شہرنامے میں خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر شیخ یوسف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ عدالت نے اوورسیز پاکستانی مقبول رسول سے فراڈ کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 48 کنال 5 مرلہ رقبہ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پراپرٹی کے مختار خاص چودھری وقاص یعقوب نے ماہر قانون چودھری محمد سعید احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق ڈپٹی میئر شیخ یوسف نے اوورسیز پاکستانی مقبول رسول سے فراڈ کرتے ہوئے 48 کنال 5 مرلہ ناجائز قبضہ کر کے جعل سازی سے شہریوں کو فروخت کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 48 کنال 5 مرلہ رقبہ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ چودھری سعید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ مکمل آزاد ہے۔ 100 کروڑ کی پراپرٹی کی واپسی کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی خوش آئند ہے۔ خیرپور میں جمعے کے روز دیرینہ دشمنی پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین کی شناخت حاتم علی، برکت علی اور شکیل کے ناموں سے ہوئی۔ تینوں افراد کا تعلق تحصیل کوٹ کے گوٹ لیاری سے ہے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس فورس نے موقع پر پہنچ کر بروقت مارے جانے والے برکت علی، شکیل کی لاشیں اور حاتم کو سول اسپتال پہنچا دیا، جہاں زخمی حاتم علی بھی دم توڑ گیا۔ مسلح افراد نے مقتولین کو فائر بریگیڈ روڈ پر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے گیٹ نمبر 3 پر گولیوں کا نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولین مخالفین کے ساتھ زمین کے تنازع پر دشمنی چل رہی تھی، جس پر واقعہ پیش آیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے۔ واقعے میں ملوث ملزمان نے گھناؤنا جرم کیا ہے۔ ان کو جلد گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاک پتن میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار مزدہ بس نے سڑک پر کراس کرتے ہوئے راہگیر کو کچل دیا۔ راہگیر عبداللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ ناتھو والا کھو کے قریب پیش آیا، جہاں پر تیز رفتار مزدہ بس نے سڑک کراس کرتے ہوئے راہگیر کو کچل ڈالا۔ راہگیر عبداللہ کو سر پر چوٹیں لگنے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ میں بے قابو ٹرک قریب سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی پر جا گرا۔ حادثے میں دونوں جاں بحق ہو گئے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے حادثے کے نتیجے میں نسرین بی بی 45 سالہ اور اس کا شوہر جاوید 50 سالہ بھاری بھرکم ٹرک کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو کاروں نے کرین اور ریسکیو آلات کی مدد سے لاشوں کو ملبے تلے سے نکال کر تھانہ صدر شیخوپورہ پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ٹرک ڈرائیور تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ پولیس نے ٹرک اور موٹر سائیکل کو قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے میاں بیوی محلہ شیش محل کے رہائشی تھے۔ فیروز والا میں گزشتہ روز چوکی لبان والا میں فائرنگ سے زخمی پولیس اہلکار اعجاز دم توڑ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز چوکی لبان والا میں سابقہ بیوی کو قتل کرنے والے ملزم نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ ملزم سجاد عرف شہزاد کی فائرنگ سے کانسٹیبل وائرلیس آپریٹر اعجاز زخمی ہوا تھا۔ کانسٹیبل اعجاز اسپتال میں دوران علاج شہید ہو گیا۔ کانسٹیبل اعجاز کو شہید کرنے والا ملزم تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ سی ٹی ڈی کی خصوصی ٹیم نے جام شوروں میں کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کا دہشت گرد پکڑ لیا۔ ملزمان کے ساتھ مقابلے میں ایک دہشت گرد گرفتار اور ساتھی فرار ہو گئے۔ ملزم سے پسٹل، گولیاں اور ہینڈ گرینیڈ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹیکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ایس آر اے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد یونس خان کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھی
تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ملزم کے قبضے سے پسٹل، گولیاں، ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوا، جبکہ جائے وقوع سے خالی خول بھی ملے۔ گرفتار دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں کی بھی ریکی کرتے تھے۔ شیخو پورہ میں 16 مقدمات میں مطلوب فیاض عرف فیاض ڈکیٹ گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقدی، 3 عدد موٹر سائیکل، 4 عدد موبائل فون اور 2 عدد پسٹل برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں آفتاب اور فیاض شامل ہیں۔ فیاض عرف فیاضو ڈکیٹ گینگ علاقہ بھر میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا، جبکہ دوسری کارروائی میں 2 شراب فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 24 لیٹر دیسی شراب برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیدرآباد میں انعقاد کیا گیا، جس میں ایم کیو ایم کے مرکزی قائدین سمیت کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ حیدرآباد سے دیکھیے بیورو چیف عمران خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد میں کارکنان سمیت مرکزی قائدین اور چیئرمین خالد مقبول صدیقی خصوصی شریک ہوئے۔ میں تو چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عوام کو نہ ملے، ایسی جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا بڑا واضح موقف رکھا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہماری جتنی ہی وضاحت کے ساتھ یہ مقدمہ رکھا ہے۔ یہ مقدمہ کراچی اور حیدرآباد کا مقدمہ نہیں ہے، کسی خاص زبان بولنے والوں کا مقدمہ نہیں ہے، 24 کروڑ پاکستان کی عوام کا مقدمہ اور حق ہے۔ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، ایسی جمہوریت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی جمہوریت، پاکستان کی جمہوریت جاگیردارانہ جمہوریت ہے، موروثی اور خاندانی حکومتیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے صرف حیدرآباد اور کراچی کا نہیں بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ عمران خان، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ کبیروالا میں پولیس نے ملزم سے 100 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس نے ٹیم کے ہمراہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے پاس سے 3 کینز میں 100 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ملزم بائی پاس عبدالحکیم پر منشیات لے جا رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ صفدر آباد پولیس نے منشیات فروش سمیت مویشی چور گرفتار کر کے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد چودھری عبداللطیف گجر نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جو خرد سے بدنام زمانہ منشیات فروش خورشید سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی، جبکہ مویشی چوری میں ملوث ملزم ممتاز عرف بھٹو سے مویشی اور نقدی سمیت 1 عدد رائفل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد معاشرے کا ناسور ہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
पतोकी में 3 मुसल्लह डाकू दुकानदार से 1,65,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। पतोकी की मेका रोड के ताजिरों ने मुल्तान रोड पर वारदात के खिलाफ एहतजाज किया। ताजिरों ने मुल्तान रोड को ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इतला मिलने पर थाना सिटी के SHO राहिल अहमद खान मौके पर पहुंच गए। शहरियों ने पतोकी और गिरदोनवा में बढ़ती हुई डकैतियों के खिलाफ IG पंजाब DP कसूर मोहम्मद ईसा खान से नोटिस का मुतालबा कर दिया। घोटकी में मीरपुर माथेलो के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। आपको बताएं कि पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान असगर को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत को हतमी चालान पेश किया जाए। रहीम यार खान मोटरवे पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम और कार्रवाई का आगाज कर दिया। मोटरवे पुलिस की जानिब से 15 रोज़ा आगाही मुहिम में मुख्तलिफ टोल प्लाजा पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए मोटरवे पुलिस मैदान में आ गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज़ की आगाही मुहिम और कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ टूल प्लाजाज मूवी पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए और फौरी गाड़ियों को चेक करवाने वाले कानून की पासदारी करने की हिदायत की। SP मोटरवे राना पुलिस सरफराज का कहना है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां स्मोक का बाइस बनती हैं, जिनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। फतेहपुर में बाजार अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। टूट फूट और नकासी का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से परेशानी का सामना है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं फतेहपुर मेन बाज़ार में। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट गुजरते हैं। यहाँ पर कई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंतजामिया को इस तरह नोटिस दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ये रास्ता जो है मेन बाज़ार का एंड है। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 स्कूल हैं, 2 सरकारी स्कूल और 5-7 स्कूल हैं। देखिए छुट्टी का टाइम है, बच्चों को जाने आने के लिए मुश्किलात का सामना करना है। यहाँ पे आवाम ने अपनी मदद आपके तहत ये देखें, ये यहाँ तक सड़क बनाई हुई है। बाकी जो इंतजामिया को परेशानी आ रही है, हमारा DCO साहब से, AC साहब से और ज़िला पंजाब साहब से ये रोज़ाना मजम्मत करते हैं, इसकी अपील करते हैं कि इस मसले का फौरी तौर पर हल किया जाए। उनसे पुरजोर अपील है कि इस मसले का फौरी हल किया जाए, ये इस रस्ते को साफ किया जाए। हाँ जी, देखें महरूमियों का शिकार फतेहपुर हमेशा की तरह यहाँ पर फतेहपुर में जो है वो रफ़ाए आमा के काम जो है वो कम किए जाते हैं। इस वक्त शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। महंगाई में मुसलसल कमी के हुकूमती दावों के बावजूद गोश्त, सब्जी और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। गोश्त और फल आम आदमी के लिए ख्वाब बन गए। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी नाकाम हो गई। इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत का दावा है कि पिछले 1 साल में महंगाई में खातरख्वाह कमी हुई है, मगर हुकूमती दावों के बरअक्स हारूनाबाद में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतें कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गई हैं। क्योंकि यह गोश्त 600 रुपए से कम नहीं मिलता। बड़ा गोश्त 1000 रुपए और बकरे का गोश्त 2000 रुपए हो चुका है। इसी तरह प्याज 160 रुपए फी किलोग्राम से कम नहीं मिलते। टमाटर 200 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। आम आदमी को हुकूमती दावों के बरअक्स कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगी सब्जियां खरीदना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पेट का ईंधन जो भरना है और फ्रूट खरीदने की हमारी इस्तिकात नहीं है। दूसरी तरफ हारूनाबाद की मुकामी इंतजामिया और हुकूमत की कायम करदा प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ रेट लिस्ट जारी करवाने तक महदूद नजर आती हैं, क्योंकि बाजार में सरकारी निरखों पर कुछ भी नहीं मिलता या फिर सरकारी निरख भी बहुत ज्यादा होते हैं। सरकारी रेट पर कहीं से भी गाय या बकरे का गोश्त मिलना मुश्किल है। हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटी
बस कागजी कार्रवाई तक महदूद है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों, गोश्त और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को संजीदगी से काम करना होगा, क्योंकि आवाम की बड़ी अक्सरियत खाने पीने की रोजमर्रा एशिया खरीदने से कासर होती जा रही है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पतोगी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बैट नंबर 14 ने धुआं छोड़ने वाली और फजाई आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि मुहिम के दौरान ट्रांसपोर्ट अड्डों, पब्लिक सर्विस, हैवी गाड़ियों के ड्राइवर्स, मालिकान और रोड यूज़र्स को आगाही फराहम की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिन ऑफिसर का कहना था कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को किसी सूरत भी हाईवे पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। धुआं छोड़ती और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। फूड सेफ्टी टीमों ने मंडी बहाउद्दीन के इलाके मकवाल और छालिया समेत ज़िला भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें 3 फूड पॉइंट्स बंद किए। एक मुल्क कलेक्शन सेंटर पर मुकदमा दर्ज, 5 मन से जायद खुश्क दूध ड्रम और वेट मशीन जब्त कर ली। यहाँ आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में फूड पॉइंट्स में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, प्रोडक्शन बंद कर दी गई। नाकिस स्टोरेज, गंदी दीवारें, जंग आलूद बर्तन, वर्कर्स की सफाई ना होने पर एक्शन लिया। दूसरी जानिब मिल्क कलेक्शन सेंटर से खुश्क दूध बरामद होने पर मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मालकान से पाउडर से दूध बनाकर जालसाजी में मुलव्वस पाए गए। आसिम जावेद के मुताबिक फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक काम करें। पंजाब भर में गैर मियारी खुराक फरोख्त करने और जालसाजी करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जालसाज माफिया माशरे का नासूर है। खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें। मेहाड़ी में विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबात ने हिस्सा लिया, जिसके मेहमान खुसूसी DPO विहाड़ी मुनव्वर अमान थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कामसट यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और कामसट यूनिवर्सिटी में जो कि बच्चियों का क्रिकेट में बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। हमारे साथ DPO विहाड़ी मंसूर अमान साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। जो प्राइजेज़ हैं, इनामात हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब हम ये देखें कि इस किस्म की एक्टिविटी में जो बच्चियाँ शमूलियत कर रही हैं, कल कला को इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनकी खुद एतमादी है, वो कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कामसट के डायरेक्टर डॉक्टर सलीम साहब बहुत ही सीजनड एजुकेशनिस्ट भी हैं, लेकिन साथ साथ जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, इनका और तमाम फैकल्टी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस किस्म की एक्टिविटी को जो है वो यहाँ पे अरेंज किया। साथ ही साथ हम इनके साथ हैं। इसी जगह पे हमने एक बच्चियों के लिए ड्राइविंग स्कूल ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया है और इंशाल्लाह अनकरीब तमाम फैसिलिटीज़ के साथ एक विमेन सेंट्रिक खिदमत मरकज़ जो है वो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। मकसद हम सबका एक है कि हमारी बच्चियाँ कमज़ोर नहीं हैं और हमने उनके एम्पावरमेंट को यकीनी बनाना है। थैंक यू जी, ये थे DPO विहाड़ी मंसूर अमान साहब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम फ़रूक शौकत साहब। आइए हम इनसे भी जानते हैं ये क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे DPO साहब मंसूर अमान साहब का और बाकी सारे साथियों का, जिन्होंने अपने गुनागू मसरूफियात में से टाइम निकाला और एक जो हमने अपनी थोड़ी सी कोशिश की थी कि इस इलाके को, इस रीजन को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, जिसमें बच्चियाँ जो घरों में जो भी उनके हालात होते हैं, थोड़ा घुटन सी होती है और ओवरऑल भी मुआशरे में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको जो भी उन्होंने करना है, परफॉर्म करना है, खुल खुला के खेल लें। बच्चियों पर बड़ा फ़ख्र है। जी, DPO विहाड़ी मंसूर अमान और डॉक्टर सलीम फ़रूक साहब, जो इनका यही कहना है कि हम बच्चे को ज़्यादा इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन करें। जी, भक्कर की तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल दरिया खान में DDHO डॉक्टर इलियास रज़ा और MS दरिया खान डॉक्टर शाह महमूद की सरपरस्ती में वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। वॉक में एडमिन ऑफिसर दरिया खान बुरहानुर रहमान, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर एहसन आलम, हेड नर्स
फरखुंदा नास HLOCMO US एरिया इंचार्ज, लेडी हेल्थ समेत अस्पताल एहलकारों ने पोलियो आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया। खिताब करते हुए डॉक्टर इलियास रजा मलिक और डॉक्टर शाहिद महमूद का कहना था, पोलियो का खात्मा न सिर्फ एक अवामी सेहत की तरजीह है बल्कि माशरती इंसाफ और मसावात का भी मामला है। पोलियो ज़्यादातर हमारे माशरे के सबसे कमज़ोर तबके को मुतासिर करता है और कोई भी बच्चा ऐसी बीमारी का शिकार नहीं होना चाहिए जो मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेदाद है। वज़ीराबाद मुकामी मैरिज हॉल में निजी स्कूल्स के असातिज़ा के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजाम प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा के लिए एक तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें रियाजी के मजमून से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मुल्क की नावा ट्रेनर में सादिया नुमा ने साजा को रियाजी के बारे में तफसील से बताते हुए कहा कि आमतौर पर रियाजी को एक मुश्किल तरीन मजमून तस्वर किया जाता है, जबकि ऐसा हरगज़ नहीं है। रियाजी एक आसान और दिलचस्प मजमून है। उन्होंने कहा कि हम चाहें या न चाहें मजमून रियाजी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर असरअंदाज होता है। किसान हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहर, हर शख्स का रियाजी से अटूट रिश्ता है और मतलूबा महारत किसी भी मुतवाज़न समाज की नागज़ीर ज़रूरत होती है। रियाजी ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी मदद करता है बल्कि मेरे ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करता है। प्रोग्राम में रियाजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई और सवाल जवाब की नशिस्त में साथिज़ा और शुरका ने आगाही से भरपूर सेशन गुजारा। प्रोग्राम के आखिर में मेज़बान चौधरी शहजाद अहमद की जानब से साथिज़ा को सर्टिफिकेट भी दिए गए और पुरतकल्लफ खाने से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फरूक, मेट्रो वन न्यूज़, वज़ीराबाद। और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि राजनपुर में निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोट मिठन में एक अवामी फोरम सेमिनार मुनक़िद किया गया है। आपको बताएं कि अवामी फोरम में जामशोरो पावर कमेटी लिमिटेड प्लांट के माहौलियात पर मनफी असरात को उजागर करते हुए ADB को माहौलियाती नुकसानात की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि बैंक JPCL प्लांट की क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करे और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी को तरजीह दे। तकरीब में मुक़र्रिरीन ने पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क की तवानाई की सप्लाई को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। अवामी फोरम में मज़ीद मुतालबा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान सैलाब से महफूज बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करे ताकि कम्यूनिटीज़ को बाइख्तियार बनाया जा सके। नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर कायम रेस्टोरेंट और स्टॉल्स की नीलामी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस मोहम्मद इब्राहिम बलोच की निगरानी में की गई। यहाँ आपको बताएंगे, मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, प्लेटफॉर्म्स एशिया खुर्दनोश की मुकर्रर कीमतों से ज़ायद वसूली की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इब्राहिम बलोच सहाफ़ियों की निशानदही पर मुतादिद मसाइल के हल के लिए फौरी अफसरान को मौका दें और हिदायत करें कि उन्होंने कहा, अवाम और मुखैर हजरात के ताउन और मीडिया के दोस्तों की रहनुमाई से नवाबशाह रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाएंगे। चंद मसाइल ऐसे हैं जो स्टाफ की बेहद कमी की वजह से जन्म ले रहे हैं, ताहम पाकिस्तान रेलवे सेक्टर डिवीजन के इख्तियार में जो मुमकिन होगा इक़दाम करेंगे। गुजरात में आवारा कुत्तों के हमले में 2 साला बच्चे की हलाकत पर डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने मुतासरा ख़ानदान से इजहार अफसोस किया और उनकी फौरी माली इमदाद का ऐलान किया। मुतासरा यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी सुपरवाइज़र को मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन के करीब आवारा कुत्तों के हमले में एक 2 साला बच्चे की अफसोसनाक हलाकत पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क ने मुतासरा ख़ानदान से गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी माली इमदाद की। डिप्टी कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान बच्चे के जनाजे में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। 4 माह के दौरान आवारा कुत्तों की तलफी के लिए 1363 कुत्तों को हलाक किया गया है और अब मज़ीद मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हो सकें।
कैरोड़ पक्का मौजा अली पुर का जो पुल को बाल पर अहले इलाका की पंजाब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम और नात ख्वाह सज्जादा नशीन दरबार महर शाह पीर सैयद जवार हुसैन शाह बुखारी ने शिरकत की। आपको बताएं कि महफिल मिलाद में कारी खुर्शीद उल हसन नईमी ने तिलावत की सादत हासिल की। नात ख्वानों ने गुलहाए अक़ीदत सरवर कौनैन पेश किए। पीर सैयद मोहम्मद मोहसिन अली शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नमूना बन कर आए। आप जैसा कोई ना है और ना कोई आएगा। आपका फ़राइज़ से तालिब हुसैन मेहदी वक़ार मुख्तियार ने सरअंजाम दी। इस महफिल की सदारत पीर सैयद जवार सैयद शाह बुखारी ने की। मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद मंजूर, मलिक मोहम्मद हाशिम ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए लंगर भी तकसीम किया। आखिर में कौम की तरक्की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं खुसूसी भी की गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल लंदन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ आपको बताएंगे गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल मसाइल का गढ़ बन गया। स्कूल की 4 दीवारी और कमरे ना होने की वजह से तलबा खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी तरफ तलबा की जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए प्ले ग्राउंड भी नहीं है। इसके साथ साथ ना तो कंप्यूटर लैब है, ना स्टाफ के लिए कोई ऑफिस। तलबा ने एहतजाज करते हुए CEO एजुकेशन और DCO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बक्कर में पीपल्स पार्टी की जानिब से बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनानों अहदेदारान ने शिरकत की। आपको बताएं कि साबिक जिला सदर एजाज अली शाहानी का कहना था कि बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमराना हुकूमत के जुल्म जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। आप मादर जमहूरियत और अज़्म और हौसले की अलामत हैं। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और सियासत में उनकी शमूलियत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नज़रिए को मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। बेगम नुसरत भुट्टो 13वीं बरसी पर उनके मिशन को जारी रखने के अज़म का अयादा करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क में बढ़ते हुए TB की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारे TB कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन के साथ हैदराबाद के एक निजी हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। मुल्क भर में टीबी के मर्ज की शरह बढ़ती जा रही है। टीबी के बढ़ते मर्ज की रोकथाम के लिए मुल्क भर में काम करने वाले इदारे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन के साथ अब सितारा सोशल प्रोग्राम की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस वक्त जो गवर्नमेंट के यहाँ पे हैदराबाद में 20 टीबी के सेंटर है, जहाँ पे फ्री डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, और उसके साथ में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हज़ारों की तादाद में, उनको ग्रीन स्टार के थ्रू इन्वॉल्व किया है ताकि वो भी पेशेंट्स की डायग्नोसिस करें। प्रीवियसली हम लोग जो है सिर्फ जीपीज़ के ऊपर काम करते थे, जो जनरल प्रैक्टिशनर से, और अब जो है हम लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स मिल रही हैं टीबी की, और हम लोग सारे टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं। तकरीब में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर्स ने शिरकत की, जबकि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर ओहदेदारान भी खुसूसी शरीक हुए। आज की जो ये तकरीब थी वो सह माही हमारा डेटा कलेक्ट होता है, और सह माही हम सबको बुला के जो भी इसके पार्ट है और रिव्यू करते हैं, तज्जिया करते हैं कि हमने क्या किया, कितनी हमारी प्रोग्रेस हुई, आगे क्या करने की ज़रूरत है। आज का ऑब्जेक्टिव यही था, जिसमें CDC ने भी पार्टिसिपेट किया, और जो प्रोविंशियल अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हमारे साथ काम करते हैं उन सब ने भी ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में सहमाई कारकर्दगी पर बात की गई और सहमाई कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया, जबकि काम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए तजावीज़ भी दी गई। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
सीनियर सहाफ़ी मियाँ फ़िदा हुसैन जोया की रस्म कुलख्वानी जतोई में अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। आपको बताएं कि रस्म कुलख्वानी पर सज्जादा नशीद दरबार फरीदकोट मिठन शरीफ मोइनुद्दीन महबूब कोरिजा ने खुसूसी दुआ की और रूह परवर बयान किया। उन्होंने कहा कि मियाँ फ़िदा हुसैन मरहूम ने सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क और बेबाक सहाफ़त में गुजार दी। मियाँ फ़िदा हुसैन जोया मरहूम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, सरदार मोहम्मद दाऊद जतोई MPA, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जलीलुर रहमान खान, SHO नज़र हुसैन सुखेरा, सरदार मोहम्मद ज़िया, SHO ज़ुहैर इमरान खान समेत हज़ारों की तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़े ने शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानेवाल में क्रैकडाउन किया। फूड सेफ्टी टीमों ने स्वीट्स यूनिट पापड़ फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया। यहां आपको बताएंगे फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाइयों में रेलवे कॉलोनी खानेवाल के दीगर मुकदमात पर की गई खुराक में रेजिडेंट ऑयल का इस्तेमाल करने का नॉन लेबल पाउडर बरामद होने पर बेकरी को भारी जुर्माना अदा किया। केमिकल ड्रम्स में स्टोर किया गया बदबूदार शुगर सिरप भी बरामद किया गया। पापड़ की तैयारी में रेंज्ड ऑयल का इस्तेमाल, फूड आइटम्स की गंदे फर्श पर स्टोरेज होने पर पापड़ फैक्ट्री को जुर्माना आयद किया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था, खुराक की तैयारी में नाकिस ऑयल का इस्तेमाल मुहल्लिक अमराज का बाइस बनता है। इनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन माफिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शेखपुरा मोटरवे पुलिस M2 ने करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली। मोटरवे पुलिस से पेट्रोलिंग अफसरान ने कोट मोमिन मोटरवे पर मशकूक वैन को चेक किया तो वैन की तलाशी पर 516 बोतल कीमती शराब बरामद हुई। सेक्टर कमांडर आशिक चौहान की हिदायत पर बरामद शराब और वैन को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। DIG जोनल कमांडर मसरूर आलम कुलाची ने अफसरान को शाबाशी दी, जबकि एडिशनल IG अली अहमद साबिर कियानी ने पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज़।